Okay, so the next topic is the process or procedure of recombinant DNA technology. So we have already discussed the requirements for requirements of the gene cloning or recombinant DNA technology. So now we are talking what is the process of all this. This topic is on page number 334 of the book, page 334 of the book, 334, on page 334 of the book. Okay, so the process or the procedure involves certain steps. So the first thing is the isolation of the vector. So the vectors, in case here the plasmids, so these plasmids are obtained from bacterial cells, which are known as the competent cell, where these plasmids are present. Okay, so they are obtained from the bacterial cells. In case of phage DNA is vector, then they are obtained from viruses. Okay, so they are obtained first and then they are purified. We do this centrifugation for the isolation of plasmids, so there are many other components that could be present there. So by doing certain steps, that is centrifugation and filtration, we can obtain plasmid in purified form from the bacterial cells. So this is the first step, isolation of vectors. Okay, so they are obtained from bacteria. The plasmids are obtained from bacteria and then they are purified. Then the second important step is the opening or the digestion of the vectors, or in this case the plasmids, with the help of with the help of restriction enzymes. I have already explained. For example, this is the plasmid, the circular plasmid. So here this place is, for example, is the multiple cloning site here. So certain enzyme is used, and when the certain restriction enzyme is used, here is the recognition site, and then the catalytic site, and the enzyme is open. तो इसको हम the plasmid is open. तो अगर ये प्लाज्मिड है, यहाँ पर उसका MCS है, ये हमारे पास EcoR1 है, तो इसको खोल देगा और प्लाज्मिड को हम कहेंगे कि पहले ये प्लाज्मिड जो था ये सर्कुलर था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, लीनियर हो चुका है, जब इसके ये दोनों एंड्स एक दूसरे से अलग हो गए. इट इज़ सर्कुलर विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये प्लाज्मिड जो है ये लीनियराइज्ड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? लीनियराइज्ड प्लाज्मिड हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज द डाइजेशन और ओपनिंग ऑफ द प्लाज्मिड. दिस इज द सेकंड स्टेप. द थर्ड स्टेप, हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एक लॉन्ग पीस ऑफ DNA मॉलिक्यूल है. इधर देखें, दिस इज़ अ पीस ऑफ DNA मॉलिक्यूल, और इस पर इधर देखें, दिस इज़ अ DNA मॉलिक्यूल. इस DNA मॉलिक्यूल पर ओनली दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. ये हमारे पास क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है. तो यहाँ से हम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करेंगे. और कैसे आइसोलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ओके, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे, यहाँ पे काटेगा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो यूज़ करेंगे और उधर वो कट लगाएगा इधर. तो ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आइसोलेट हो जाएगा. दिस इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, द जीन. सो हम दो कामों के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं. एक हम यूज़ करते हैं फॉर ओपनिंग ऑफ द प्लाज्मिड, और दूसरा हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके. अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, और वो ये है, उसको इसकी थोड़ा सा इस पर मैं टाइम लूँगा आपको समझाने के लिए, कि इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं, ये लाजमी है कि उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज़ करें for the opening of plasmid. दोबारा, the restriction enzyme used for the isolation of gene of interest
are also used for opening of the plasmid in this case, अगर आपने ये प्रोसेस करना है। इधर देखें, ये समझाने का मतलब ये है कि अगर आपने ज़रा इधर देखें, ये हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा गौर से देखें। ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, दिस इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस। ये हमारे पास क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर आप इसको नोट करें, ये है G A T C, ये तो यहाँ पर इधर देखें GAATTC। दिस इज़, आप लोगों को याद होगा कि दिस इज़ द DNA molecule, ओके, दिस होल इज़ द DNA molecule in this case। ये हमारे पास क्या है, DNA molecule है। अब ये DNA molecule को हम यहाँ पर EcoR1 यूज़ करते हैं। जब EcoR1 यूज़ करेंगे तो वो EcoR1 जब कट लगाएगा तो वो EcoR1 कट लगाएगा, ये हमारे पास एक फ्रेगमेंट बनेगा और वो फ्रेगमेंट ये होगा, that will make a cut between G and A। तो इस जानिब हमारे पास यहाँ पर G होगा, यहाँ पर C T T A और यहाँ पे आएगा क्या, G and this is। तो ये हमारे पास एक पीस बनेगा और दूसरा पीस ऑलरेडी यू नो कि वो दूसरा पीस क्या होगा, द सेकंड पीस हमारे पास जो होगा वो ऐसे होगा। ज़रा इसको, ये जो सेकंड पीस है वो आ जाएगा इधर, यहाँ पे होगा क्या, A T यस C, ये पीस ए यहाँ पे कट लगा ना, बिटवीन G एंड A कट लगेगा, बिटवीन G एंड A कट लगेगा। तो यू नो यहाँ पर ये G नहीं होगा, सॉरी, इस पीस में। सो ये दूसरा पीस जो है दिस, वो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर G और फिर ये इस तरीके से, द रेस्ट इज लाइक दिस। यू अंडरस्टैंड, ये हमारे पास दो पीसेस बनेंगी। यहाँ पे कट लगेगा बिटवीन G एंड A, पहले मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पे कट लगेगा। तो अब ये DNA मॉलिक्यूल A से एक दूसरे के से अलग हो जाएगा, ये A से एक दूसरे से। तो हमारे पास ये जो एक पीस है ये आ जाएगा, यहाँ से ये पीस रवाना हो जाएगा और यहाँ पर कट लगाए, यहाँ पे लगाए, तो ये हमारे पीस, ये हम G आखिरी होगा और इस एंड पर CTTA आखिरी होगा। दूसरे पीस में ये इधर देखें, ये सेकंड पीस है, कट इधर लगे हैं, ठीक है ना। तो इस पीस में आ जाएगा, आखिरी होगा G और इस एंड पर होगा CTTT। तो इधर देखें आखिरी है G और CTT इस तरीके से, और यहाँ पर इधर देखें आखिरी होगा क्या, G, ये वाला G, ठीक, एंड दिस CTTA। तो ये आपने लगाया है, ठीक है ना। अब अगर इधर देखें, समझ लें आप प्लाज्म, ये यहाँ पर हमने यूज़ किया है क्या, EcoR1 एंजाइम हमने यूज़ किया है, कौन सा, EcoR1। तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया है। अब अगर हमारे पास प्लाज्मिड है, इधर देखें, ये हमारे पास प्लाज्मिड है, ये ठीक, ये हमारे पास प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड पर भी यहाँ पे होगा ना GAATTC, यू नो दिस रिस्ट्रिक्शन साइट है, और यहाँ पे होगा GAATTC, ये होगा। तो अगर आप EcoR1 इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे कट लगेगा, EcoR1 इस्तेमाल करेंगे इधर कट लगेगा, ठीक है ना। तो ये पीस ऐसे यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर। तो अब ये AATTC ऑफ द प्लाज्मिड इज कम्प्लीमेंट्री टू, ये जो AATTC है ये कम्प्लीमेंट्री है किसके, ये यहाँ के कम्प्लीमेंट्री है TTAA, इसका कम्प्लीमेंट्री होगा। और इस प्लाज्मिड का ये पार्ट जो है, जो CTT, ये इसके दूसरे पार्ट के साथ कम्प्लीमेंट्री होगा। इधर देखें, दिस इज, इधर देखें इस साइड पर होगा C, तो यहाँ पर है, इधर देखें यहाँ पे होगा, शाबाश, यहाँ पे है C, तो यहाँ पे है G, ठीक है, G, तो ये T तो A, T तो A T, यू अंडरस्टैंड दिस। इधर देखें दोनों आपको नज़र आ रहे हैं शायद, ठीक। तो यू नो अगर यहाँ पर कट लगेगा तो इस कट में जो हमारे पास वो स्टिकी एंड बनेगा, तो इस स्टिकी एंड पर यहाँ पर है, इधर देखें उस स्टिकी एंड में यहाँ पर है A, तो यहाँ पर देखें यहाँ पे होगा T, यहाँ पे A T, T तो A, T
ए एंड सी इस तरीके से, जी आ जाएगा इस तरीके से, जी तो ऑलरेडी कम्प्लीमेंट्री है इसके साथ। तो ये लाजमी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर अगर अब इसको मैं थोड़ा सा, अगर आपने कट लगाया प्लाज्मेट पर, तो ये इधर देखें, ये वाला पीस जो है समझ ले ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का है, और ये वाला पीस जो है ये प्लाज्मेट का आ गया है, बिकॉज आपने प्लाज्मेट से भी इससे कट लगाया है। तो ये अगर प्लाज्मेट का ये एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट के इस एंड के साथ क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो इस वजह से ये लाजमी है, कि आप जिस एंजाइम के ज़रिए आप जीन ऑफ इंटरेस्ट में कट लगाएंगे, उसी एंजाइम के ज़रिए आपने प्लाज्मेट को भी ओपन करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ़ यू डोंट let me ask, after watching the video I can explain it again, ठीक, लेकिन ये important चीज़ है। The next step is, then we put, इधर देखें, जब आपके पास यहाँ पर इधर देखें, ये आपके पास आप लोगों ने, this is the tube, जिसमें आप लोगों ने EcoR1 इस्तेमाल किया है, EcoR1 इस्तेमाल किया है, SMA1 इस्तेमाल किया है, और उसके ज़रिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया है। ठीक, ये आपने एक और ट्यूब है, उसी ट्यूब में भी आप EcoR1 और SMA1 इस्तेमाल करेंगे, और आपने किसकी प्लाज्मेट को ओपन किया है। नाउ द प्लाज्मेट इज़ लीनियर। यहाँ पर अब एक और ट्यूब ले लें, इधर देखें, एक और ट्यूब ले लें, उसी ट्यूब में जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी डालें, प्लाज्मेट को भी डालें, और उसके साथ लाइगेज मिलाएं। तो ये लाइगेजेस क्या करेंगी, लाइगेजेस इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, बिकॉज बोथ हैव द सेम कम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और प्लाज्मेट्स हैं, इन दोनों के कम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स होंगे, तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और फिर उसके बाद लाइगेज जो है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट एक वीडियो में कि हाउ द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड। तो लाइगेशन ऑफ, नेक्स्ट स्टेप जो है, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द प्लाज्मेट विद द हेल्प ऑफ लाइगेजेस, जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और क्यों बनेंगे एक दूसरे के साथ, बिकॉज आपने एक किस्म का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया है। तो जो स्टिकी एंड्स हैं, जो प्लाज्मेट का स्टिकी एंड है और जीन ऑफ इंटरेस्ट का स्टिकी एंड है, वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री हैं, स्टिक एंड्स कम्प्लीमेंट्री हैं। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और फिर दो डीएनए मॉलिक्यूल के जो एंड्स होंगी उनके दरमियान जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा। ओके, जब आपके पास कंस्ट्रक्ट बन जाएगा, यहाँ पर इस प्रोसेस में आपके पास कंस्ट्रक्ट बनेगा, जब लाइगेशन होगी कंस्ट्रक्ट बनेगा। इधर देखें, ये आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपके पास प्लाज्मेट है। ओके, ये आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, प्लाज्मेट है। तो लाइगेशन की मदद से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके साथ मिल जाएगा, और जब इसके साथ मिल जाए ये चीज़, तो अब ये जो प्लाज्मेट along with the gene of interest is called construct. The plasmid along with the gene of interest, the plasmid along with the gene of interest is called construct. तो ये construct बना है आपकी। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसी कंस्ट्रक्ट को बैक्टीरियल सेल में डालना है, जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वहाँ पर आप ये प्लाज्मेट डालेंगे। ठीक, दिस इज़ द प्लाज्मेट, ये प्लाज्मेट है along with the gene of interest, ठीक है ना, along with the gene of interest। ठीक, ये आपने डाल दिए हैं, ठीक है ना, ये ओके, along with the gene of interest यहाँ पर आपने इंसर्ट किए हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, कॉम्पिटेंट सेल्स, एक्सप्रेशन सिस्टम अब यहाँ पर एक्सप्रेशन शुरू करेगा। फिर आप लोगों ने सेपरेट करना है ट्रांसफॉर्म्ड को अनट्रांसफॉर्म्ड से। अगेन तो उस काम में फिर दोबारा आप क्या करेंगे, इसी में हमारे पास एक मीडियम है, इधर देखें, ये हमारे पास एक मीडियम है, उस मीडियम में हमने कोई एंटीबायोटिक डाला है। ठीक, इसी मीडियम में हमने एंटीबायोटिक डाला है, एंटीबायोटिक, और अब हम ये सारे बैक्टीरिया इस मीडियम पर ग्रो करते हैं। लेट्स से ये एंटीबायोटिक जो है ये क्या है, एम्पिसिलिन। उसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है प्लाज्मिड है वो एम्पिसिलिन
एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, प्लाज्मिड है, ठीक है ना। प्लाज्मिड में जो जीन है वो सेलेक्टेबल मार्कर जीन कौन सा है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक कौन सा डाला है, एम्पेसिलिन। तो अब जो बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड अंदर आ गया, यू नो दीज आर द बैक्टीरियल सेल, दीज आर द बैक्टीरियल सेल्स। नाउ द बैक्टीरियल सेल हैविंग द प्लाज्मिड, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर सरवाइव करेंगे। और जिन में ये प्लाज्मिड से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, जिन बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, वो यहाँ पर सरवाइव नहीं करेंगे। तो जो सरवाइव करेंगे हम कहेंगे कि दे आर ट्रांसफॉर्म, जो सरवाइव नहीं करेंगे उसको हम कहेंगे दीज आर अनट्रांसफॉर्म। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, द आइसोलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स। This is known as what, the isolation of the transformed bacterial cell with the help of selectable marker genes by growing bacterial cells on medium having certain antibiotic. Okay, I hope you understand these things. Thank you.